Good morning, students. Welcome back to the class. So, we are studying the classification of accounts, which is the basic part of accountancy. This is the base of accountancy. You have to study very carefully, and you have to learn all the rules. I told you personal accounts. Personal accounts are those accounts which have some identity. All the persons, all the companies, firms, society, banks, and all the accounts which are representing them comes under the personal account. And the rule of accounting is debit the receiver and credit the giver. Real accounts includes all the assets, fixed assets, current assets, tangible assets, intangible assets. I have told you all. And its rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. I have given you homework. In this homework, you have to identify personal account. Then you were to tell me whether it is debit or credit and also the reason. So all of you have done very carefully. Now I am giving you the solutions. You may check yourself what you have done. So first point is goods sold to Mukesh. Here in this example, it's clear that Mukesh is personal account. Goods sold to Mukesh. हमने मुकेश को गुड्स सेल करे हैं. कुछ बच्चों ने गलत किया है. हमने मुकेश को सेल करा तो मुकेश गुड्स रिसीव करेगा ना. गुड्स का मतलब जो चीजें हम हमारे दुकान पर हमारे बिजनेस के अंदर बेचते हैं, गुड्स उसको कहते हैं. कमोडिटी भी कहते हैं उसको. द थिंग्स विच यू डील इन बिजनेस. सो वी आर सेलिंग गुड्स टू मुकेश. सोल्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ सेल. ऑल ऑफ यू नो. So we are selling goods to Mukesh. So Mukesh is receiver. So Mukesh will be debited. That is the solution of first point. Second is computers purchased from Mohan rupees 9,000. So in this example also it is very clear that personal account is Mohan, because Mohan is a person, individual. So we are purchasing computer from Mohan. तो मोहन हमें कंप्यूटर देगा या हमसे कंप्यूटर लेगा? मोहन हमें कंप्यूटर देगा. हमने उससे परचेज किया है तो मोहन गिवर होगा. मोहन इज गिवर. मोहन गिवर है इसलिए वो क्रेडिट होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. Arif paid to us rupees 50,000 by check. Here in this example, there were two personal accounts. Only one or two, I think you have recognized it. First personal account is Arif, because Arif is a person. Second personal account is bank. चेक कहां से मिलेगा हमको? चेक के पैसे कहां से मिलेंगे? बैंक से. तो इस एग्जांपल में आरिफ पेड टू अस. आरिफ ने हमको दिया. क्या दिया? चेक दिया. तो इस एग्जांपल में आरिफ तो गिवर हो गया क्योंकि आरिफ से हमें चेक मिल रहा है. और रिसीवर कौन होगा? रिसीवर इसमें बैंक होगा. इस एग्जांपल में दो पर्सनल अकाउंट हैं, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा. ठीक है. तो हम ऐसा मान रहे हैं कि आरिफ ने हमें चेक दिया,
हमने उसको बैंक में जमा करा दिया और बैंक में हमें पैसा रिसीव भी हो गया। तो थर्ड वाले के अंदर आरिफ is given, he will be credited, okay, and bank is receiver, it will be debited, okay. Fourth is Manmohan is paid rupees 9,000. Some grammar you have to apply. Manmohan is paid, it means हम मनमोहन को पैसा दे रहे हैं। मनमोहन इज रिसीवर, so he will be debited. Manmohan is receiver, so Manmohan's account will be debited. Understood? Next is received from Sohan rupees 15,000. It is so easy. We are receiving 15,000 from Sohan. So Sohan is what? Giver. And what is our rule? Debit the receiver and credit the giver. Now I hope that you have very much understood about personal account. I think personal account is very much clear from my side. If you have any problem in personal account, you may ask on the query group. Without any hesitation, you can ask. I will surely answer you and I will be happy by answering you. I want you all study very carefully, because if base is clear, everything will be fine. If base is not clear, then nothing will be there. So today we will read some examples of real account. Take this example. Computer purchased from Mohan. Now tell me which is real account in this example. So it is very simple that computer is real account, because I have told you all the assets are real account. In this example, only one asset is visible, that is computer. So computer will be real account. Now, what is the rule of real account? Debit what comes in and credit what goes out. तो सिंपल सी बात है, अगर आप असेट खरीदे हो तो वो डेबिट होगा, बिकॉज खरीदेंगे तो वो हमारे बिजनेस में आएगी. डेबिट व्हाट कम्स इन. और हम जब असेट को बेच देंगे या असेट खराब हो जाएगी, बॉर्न आउट हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, असेट टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, इन सब केसेस में असेट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा. तो बिजनेस से बाहर जाना या फिर खराब होना सब एक ही बात है. तो असेट खरीदेंगे तो डेबिट और असेट को बेचेंगे तो क्रेडिट. सो इन दिस एग्जांपल computer is
real account, it will be debited, और रीजन को ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, क्योंकि हम खरीद रहे हैं तो वो हमारे पास आ रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर सेकंड ऑफ रियल अकाउंट, मोटर कार destroyed due to accident costing rupees 4 lakh. The business has some motor car for its purpose, and that motor car met an accident and destroyed completely. Its cost was rupees 4 lakh. Now in this example, motor car is real account. अब ये डेबिट होगी या क्रेडिट होगी? ये क्रेडिट होगी, क्योंकि डेस्ट्रॉय हो रही है। डेस्ट्रॉय हो रही है मतलब बिजनेस से बाहर जा रही है, वो खत्म हो गई। समझ में आया आप लोगों को? और एक और बात, कैश भी रियल अकाउंट होता है, बिकॉज कैश भी तो हमारी एसेट है। तो कभी भी अगर हम किसी को कैश दे रहे हैं या ले रहे हैं तो उसमें कैश को रियल अकाउंट मानना है। जैसे फॉर एग्जांपल, रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹20,000। ध्यान से समझना इसको, इसमें दो अकाउंट छिपे हुए हैं। इसमें एक तो रियल, एक तो पर्सनल अकाउंट है राम, दूसरा कौन सा अकाउंट है? अब इसमें कहीं पर भी कैश लिखा हुआ नहीं है, मगर अंडरस्टूड है ना कि रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹20,000, तो क्या रिसीव कर रहे हैं? कैश। तो हमें पहचानना पड़ेगा कि जो कैश है वो हमारा इसके अंदर रियल अकाउंट है। ओके, सो हमें अगर रियल अकाउंट पहचानना है तो इस एग्जांपल में कैश हमारा रियल अकाउंट है, और हमें कैश रिसीव हो रहा है मतलब कैश हमारे पास आ रहा है, तो डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि वो हमारे पास आ रहा है, इट कम्स इन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, व्हाट विल हैपन टू राम? राम इज गिवर, सो राम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। हर एंट्री में ऐसा ही होगा, एक चीज अगर डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्रेडिट होगी। डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं इसको। आगे हम जनरल एंट्री करना भी सीखेंगे, ठीक है। नाउ आई थिंक यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट रियल अकाउंट। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल फॉर योर होमवर्क। In that you have to identify both personal and real account. वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा ये बताना है आपको, और साथ के साथ आपको उसका रीजन भी बताना है कि क्यों होगा। नाउ आपके पास दो चीजें हैं,
पहला आपको पर्सनल अकाउंट पहचानना है, दूसरा उसी ट्रांजेक्शन में आपको रियल अकाउंट भी पहचानना है। जरूरी नहीं है कि हर एक में रियल भी हो पर्सनल भी हो, दो पर्सनल भी हो सकते हैं। जैसे आज हमने एग्जांपल देखा था चेक रिसीव फ्रॉम आरिफ वाला, जिसमें बैंक और आरिफ दोनों ही पर्सनल अकाउंट थे। ऐसा ही अदर एग्जांपल्स में भी हो सकता है। आपको आइडेंटिफाई करना है कुल मिला के कि पर्सनल और रियल अकाउंट कौन सा है और वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा और क्यों। कंप्यूटर सोल्ड फॉर ₹10,000। पेड टू मोहन ₹16,000। पर्सनल और रियल दोनों पहचानना है आपको। थर्ड, check paid to Amar ₹20,000। Fourth, cash deposited into bank। Fifth, cash withdrawn from bank। These 5 examples you have to do in your notebook and then have to send me the solution. Okay, now we'll continue our chapter first. The next topic is functions of accounting. Okay, page number 1.3, T.S. Rewal, new edition book, functions of accounting. Now we are going to study what are the functions of accounting, functions, objectives and characteristics. These must be very similar. These may be very similar. You don't have to confuse. Just understand. First function of accounting is maintaining systematic accounting records. पहला function है accounting का कि हम systematic accounting records maintain कर सकते हैं with the help of accounting. The primary function of accounting is to maintain systematic accounting records of financial transactions and events. It means that the accounting records should be maintained following the accounting rules, principles and concepts. It is so because reliable financial statements can be drawn if proper accounting records are maintained. Reliable का मतलब होता है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दी। और इस पॉइंट का मतलब यह है कि अकाउंटिंग का प्राइमरी फंक्शन है कि हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का और इवेंट्स का। मैंने आपको बताया था ट्रांजैक्शन और इवेंट अलग अलग होते हैं। इट मीन्स दैट कि हमें अकाउंटिंग रूल्स और प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली फॉलो करना है। ये जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं, दीज आल्सो कम्स अंडर द अकाउंटिंग रूल्स, और जिससे कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल रिलायबल हों और यूजर उन पर विश्वास
कर सके। सेकंड फंक्शन है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यू मस्ट बी कंफ्यूज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है बच्चों, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं इसको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है, हमने पढ़े थे ना समराइजिंग वाले पॉइंट के अंदर, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड आपको बार बार मिलेगा, इनके बारे में एक अलग से चैप्टर भी आएगा हमारे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जो हमारी परफॉर्मेंस को बताते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताते हैं। इसके अंदर आते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शॉर्ट में से लिखते हैं P&L अकाउंट। दूसरा होता है विच शोज फाइनेंशियल पोजीशन। ये हमने पढ़ लिया था वैसे ऑब्जेक्टिव में भी। फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बैलेंस शीट, जिसमें मैंने बताया था आपको असेट्स एंड लायबिलिटीज होती है। ठीक है, दीज आर नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ईयर के एंड में बनते हैं और इससे हमको पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और इससे हमें पता चलता है कि हमारी कितनी असेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं, हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इन सबको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पीरियड के एंड में बनते हैं और इनसे हमें हमारे रिजल्ट मालूम पड़ते हैं। एक और चीज मैं आपको लिखवाना चाहूंगा, वो है, बहुत सिंपल चीज है वैसे तो, शॉर्ट फॉर्म्स। मैं आज बार बार लिख रहा हूं, डेबिट और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म DR और CR। DR के अंदर R क्यों आ रहा है, इसको डेबिट कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है डेबिट रिकॉर्ड। इसलिए अपन डेबिट को शॉर्ट में DR लिखते हैं, बहुत कम लोगों को पता होता है, डेबिट रिकॉर्ड। और CR का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। ये छोटी सी बात बतानी थी बस आपको। अब अपन आगे पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड। इसको फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। prepared at the end of the accounting period. It includes income statement, P&L account, and position statement, balance sheet. It is an important function of accounting because the financial statements show the financial performance, profit earned or loss incurred during the accounting year, and the financial position, balance sheet, as at the end of accounting year. I hope it is clear. Both the statements are important to all the users for taking decisions. These are the very important statements. All the banks and all the creditors demand our financial statements at the end of the period. You may know if some of you are having business at home. Meeting legal requirement. हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, ये भी अकाउंटिंग का फंक्शन है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ if they are maintained systematically following the accounting rules, principles and concepts. accounting records को कोर्ट के अंदर एविडेंस के रूप में भी काम में लिया जाता है। Besides the law such as the Companies Act, Income Tax, GST require submissions of returns in the form and period as is prescribed in the law. इसके अलावा कई सारे एक्ट हैं, कानून हैं, कंपनीज एक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, GST जिसको हम कहते हैं, इनकम टैक्स एक्ट, इन सब के अंदर हमें रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती हैं, उसके अंदर भी हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। द रिटर्न्स कैन बी सबमिटेड if the accounting records are maintained systematically and timely. A systematic accounting record maintained
following the accounting principles and concepts is accepted by the authorities to be correct. अगर हम सही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो अथॉरिटीज उसको करेक्ट मानती हैं. Thus, it is a function of accounting to meet the legal requirement. इसलिए अकाउंटिंग लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी जरूरी है. Fourth is communicating the financial information. It is yet another function of accounting to communicate the financial information to the user. Accounting नहीं होती तो users को financial information नहीं मिल पाती, which may be internal user और external user. मैंने आपको ये भी कई बार बताया कि internal users तो होते हैं जैसे कि हमारा मैनेजमेंट और हमारे एम्प्लॉइज, और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट और बैंक, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है ना. फिफ्थ है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को मदद करती है. असिस्टेंस मतलब हेल्प. मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन which is given by the accounting records, which in turn helps the management in decision making. मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग करता है. अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन्ड इन सच अ मैनर दैट द असेट्स ऑन आर नोन. अकाउंटिंग रिकॉर्ड इस तरीके से मेंटेन किया जाता है कि हमें मालूम पड़ जाती है कि कितनी असेट्स हमारे अंडर में हैं, हमारी ऑनरशिप में कितनी असेट्स हैं. इट विल असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्रोटेक्टिंग द असेट्स. तो इस तरीके से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन असेट्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है, एंड आल्सो एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, और उनको कंट्रोल में भी रख सकते हैं. ठीक है, आज के लिए इतना काफी है. हैव ए गुड डे. थैंक यू. डू होमवर्क एट होम. बी सेफ, बी हेल्दी, बी हैप्पी.